हम थे एक पुरज़ा इनके लिए बस, मगर जब रुकी मशीन इनकी तो हो गए हम बेघर। भटक रहे हैं हम डगर डगर, जिस नगर में हम बनाए शहर। करके एक खूने जिगर न क़द्र की ये बेक़दर। हम थे एक पुरज़ा, ठोकरें खा रहे थे हर गली हर डगर। चल पड़ी थी श्रमिक की रेल जिधर, पहुँचाने हमें घर, मगर रेलगाड़ी भी भटक गई इधर उधर। हम थे एक पुरज़ा, भूख प्यास बीमारी बढ़ती गई इस क़दर। गोया ये सब कुछ बन गया है मुक़द्दर। मिले कुछ अनजान प्रेमी हमदर्द दोस्त, मगर हर मोड़ पर खड़े थे करते हमारी फिक्र। कहते थे यूं अनजान दोस्त, ठहरो खा पी लो कुछ, करने से पहले ये लंबा सफर। हम थे एक पुरज़ा, हम तो भेजे गए थे बन के मददगार इंसानों के दिलों की बहार। तोड़ दे हम नफरतों की ये दीवार, और बने फिर से हिंद के मेमार। हम थे एक पुरज़ा, This is a collection of stories. Stories of how the Indian Muslim community reached out to the migrant workers who were compelled to go back to their homes, which they had forsaken to make a living in larger cities and prosperous towns. These were hard-working young men and women hailing from poorer and less developed parts of India. When the COVID-19 lockdown was announced,
leaving employer and employee in a conundrum. Many employers chose to conveniently look the other way. Those that had diligently served for many years, working longer and harder than the locals, and for a smaller wage, were left high and dry. They had no money for food, no funds to pay their rents and their utility bills. The only option before these hungry millions was to go back to where they came from. Back home, despite the prospects of poverty, they had hopes of a place to rest their tired bodies, a roof above their head, and at least one meal a day, and people who would care. The gory stories, perhaps never documented in the annals of history, of an 11-year-old child who rode a rickshaw for 900 kilometers to ferry his aged parents home, of a daughter who took her sick father on bicycle for hundreds of kilometers, of dozens of innocent migrants mowed down by a train, of accidents that claimed lives of migrants on highways. All this is a dark part of our history we do not want anyone to read. This short film attempts to document woes of the migrants, along with the bravery, the selflessness, and the exemplary courage of Muslim men and women throughout the vast country in providing succor and relief to the tired, fagged out souls who were disowned by their masters. Even slaves of yore had masters that never gave up on them. These stories of chivalry, of resilience, of magnanimity, of a community that can be easily termed one of the most discriminated against in any democracy, are the brightest pages of Indian history of all times. These are the stories that must be told and retold. His home on migrant trains, and now having to deal with the intense heat around the country and collapsing from heat, hunger and exhaustion. You see this toddler tugging at the cloth that's partially covering his mother, lying motionless on a railway platform. The cloth comes off, but the woman doesn't move. She died of heat, hunger and dehydration just minutes earlier. This is from the Muzaffarpur railway station in Bihar. छः महीने हो गया, अब लॉकडाउन है, घर जाने को नहीं हो रहा। इधर रुक के हम लोग 9 दिन हो गया आज। काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग गाँव जा रहे हैं। मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के सबब एक जानिब जहां मजदूर दूसरी रियासतों से जोक दरजोक पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल व दीगर सवारियों से अपने घरों की जानिब रवा दवा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस सफ़र में कुछ ऐसे बाहिम्मत और इरादों के मजबूत बच्चों के वाक़यात भी सामने आए हैं जिसे सुनकर लोग हैरत ज़दा हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासत बिहार के ज़िला दरभंगा की ज्योति अपने बीमार वालिद को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से दरभंगा तक का सफ़र किया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई और लोगों ने उसके हौसले को सलाम किया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 9 साला मासूम बच्चा नेशनल हाईवे पर अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर ले जा रहा है। इस बच्चे का नाम तबारक है और यह वाराणसी से अररिया तक अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर लाया है।
इस बच्चे की हिम्मत और हौसला का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वह 900 किलोमीटर मसाफत तय करके एक आंख से माजूर वालदा और एक पांव से माजूर वालिद को सही सलामत अपने घर ले आया है। No beast of burden am I. I left my hope for another land. Forced now I am to leave behind children with no memory of grandparents or aunts are somewhat hopeful of embraces and grants. Was I perhaps destined to be the daughter of the highway? Laden with belongings my body could heave, I trudge along without having to take leave. The city I help build with bricks I ferried on my head plaintively looks at me with emotions repressed. The meme sahibs whose plates I had to clean, whose toilets I left with no dirt seen, they have locked themselves in and locked me out and pretend I am someone unseen. Resting on my hip, my child can afford to sleep, but I have promises to keep and no time to weep. My weary feet force me remove my shoes to let them breathe. The gravel on the street I know will make my feet soon grieve. Yes, no beast of burden am I, since no pram does to me belong. My shoulders alone can help carry my young ones along. I was perhaps destined to be the daughter of the highway. Perhaps the beast of burden I am anyway. Perhaps the beast of burden I am anyway. This far, what you watched was about the woes of the migrants. The section that follows attempts to present select images and video clips showing how Muslims in India were discriminated against, beaten, battered, their properties burnt, their dignity trampled upon. These incidents relate to just what transpired before and during the recent COVID-19 lockdown in India. We hope these unhappy events will serve to set the context for the next section, in which we document how these very same Muslims who were wantonly wronged rose above feelings of vengeance. They gave not based on who liked or who hated them. They instead gave on the basis of their tradition, which dictates that they give to all who ask, and especially to the wayfarer. They gave and gave, standing at every street corner, on highways in the middle of the night, and at all major railway stations.
Communities. Muslims have told us they feel extremely scared. They accuse the police of abetting with the Hindus to beat them, vandalize their homes. Social media is abuzz with exchanges between some of Gulf's elites and India's Hindutva brigade over the rampant anti-Muslim rhetoric in India. Islamophobia in India is at an all-time high. We're openly calling for an extermination of Muslims. मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? ये कोरोना फैला रही, इसे मारो। और मेरे सर पे वार किए, उसके बाद मुझे होश नहीं लिया, सबने मार दिया। मेरा चश्मा वार कर रहे थे कि इसकी आगे घोड़ो, ये भी कहा था उसने, तो मैंने चश्मा हटाया, मेरा चश्मा जेब में रखा, तो उन्होंने खींच लिया के मेरे कुत्ते में मार करा, जिससे मेरा चश्मा भी टूट गया। इफ्तियार के टाइम पे मेरा आदमी को मैंने हाथ जोड़ के क्या मुझे इफ्तियार कर लेने दो, फिर ले जाइए, पानी का घोट पी लेने दो, फिर ले जाइए। पानी नहीं पीने दिया मेरा आदमी को। ब्रैकेट के अंदर इसको प्लेट में 3-4 डंडे मारते तो मेरे पुलिस हाथ में से खींच ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏಯ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಏಯ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ In another blatant case of discrimination against Muslims, a report in The Wire dated 5th April 2020 alleges that a doctor in Bharatpur, Rajasthan,
refused to treat a pregnant Muslim woman in urgent need of help simply because of her faith, on account of which she lost her baby. Hazi Salahuddin's car window was broken in the middle of the night. He says he'd been receiving phone calls from relatives telling him about rumours that his son attended the event in Delhi. Rumours are being spread around that the coronavirus is being spread by the Jamaat. Corona has arrived. This is what they say when they see Muslims. They're beating us, shouting at us, saying, "Here comes Corona." Is this a way to behave? There is a limit to our patience. That organised the gathering in Delhi in late March, many media outlets blamed it for the spread of the coronavirus. 50% of all the cases across India in the last 1 week are only and only because of the Tablighi Jamaat Markaz. So who are these people? Television channels and social media showed fake videos of Muslims breaking lockdown guidelines and social distancing norms. Hashtags such as Corona Jihad and Corona Terrorism began to trend on Twitter. बच्चों के लिए फ्री है, फ्री जमजम टीम की तरफ से फ्री है। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाएं। यहाँ आपके लिए खाने की सहूलत है, पानी की सहूलत है, चाय की सहूलत है। जितने भी राहगीर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर आकर भरपेट खाना खा लें, चाय पी लें। ड्राइवरों से गुजारिश है कि यहाँ पर चाय पी लें, उसके बाद ही गाड़ी चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि गाड़ी बहुत आसानी से धीरे धीरे चलाएं, किसी बात की जल्दबाजी ना हो। तमाम राहगीरों से गुजारिश है कि अगर वो भूखे हैं तो वो यहाँ पर आके खाना खा लें। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि खाना खाकर यहाँ से जाएं। ट्रक वाले भाई साहब खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए। खाना खा लीजिए, चाय पी लीजिए। आपके साथ कोई अगर भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए। बात करते हैं देश के उन असली हीरोज की जो आजकल लॉकडाउन के बीच गरीब और जरूरतमंदों को भरपेट खाना खिलाने के काम में जुटे हुए हैं।
पानी 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 दो पानी आ जाओ पानी की बोतल पानी ले लो पानी की बोतल चप्पल टूट गई लो चप्पल दे दो ना ना अरे पैन में गाड़ी ना ना ले In these days, when a large number of hapless migrants are passing by the city of Aurangabad trying to reach their homes, many different Muslim NGOs have got together and are catering to the requirements of these migrants. एक्सप्रेस जो चल रही हैं वो दिन भर में 4 से 5 ट्रेन गुजरती हैं। जिस बस्ती में हम यहाँ पर करना चाहते थे कोई काम जिन लोगों के लिए, अगर आप उनके जज्बे को देख लेंगे, आप उनकी कुर्बानियों को देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी और कई बार तो हमें अपने ऊपर भी शर्म आएगी। ये जो देग आप देख रहे हैं, ये देग इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप बोलिए, ये देखिए आप, ये इतनी देग खाली हो चुकी है सुबह से, यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों में खाना सप्लाई करके। ये देखिए, इसके इस तरह से इन्होंने पैकेट्स तैयार करके रखे हुए हैं। ये पैकेज जो है ये ट्रेन में डिलीवर करते हैं, चलती हुई ट्रेनों में। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बे को जो है कमाल है, मतलब सलाम है इनके जज्बे को। इसके अलावा ये पानी के पाउचेस डिलीवर करते हैं। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि मैं इतने अमीर लोगों के बीच में मदद लेकर के कैसे आ गया। मुझे इस बात की हैरानी है, मुझे ताज्जुब है, यकीन मानिए। ये दिल के बड़े अमीर लोग हैं, इनकी कुर्बानी को सलाम साहब। ये देखिए आप, ये पानी के पाउचेस हैं, उन्होंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए कमाल है। देखिए आप, ये जज्बा जो है ये हैरत अंगेज है। ये भोपाल है साहब, यकीन मानिए आपको इसके बराबरी की मिसाल तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यस सर, दुआ में याद रखो भाई सर। हमारे जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिए, हिंदू मुस्लिम जो नफरत का माहौल बना दिए। आप लोग इतने दिन हमारे साथ रहे, आपको कोई मुसलमान ऐसा दिखा कि जो है तो हिंदू के ताल्लुक से उसके दिल में कुछ नहीं सर, सब इज्जत किया। हम लोग मोहब्बत वाले, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम लोग मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम लोग इंसानियत का सबक देने वाले। तो आप तमाम लोगों से मैं इसीलिए आपको जोड़ा था कि अब आप लोग अपने घर पे जा रहे हैं, हमारी दुआ है, अल्लाह से दुआ करते कि आप सारे के सारे अपने मुकाम पे महफूज पहुँचें। और आप लोगों तक हमने जो खिदमत की, आप अपने जो भाई है, जो हिंदू भाई है, जिनके जहन ये मीडिया वालों ने ख़राब कर दी, उनको बताएं कि हम मुसलमानों के साथ 8 दिन रहे, 4 दिन रहे,
लेकिन किसी किस्म का किसी ने कोई तकलीफ दिया आपको? किसी ने अपनी मार्केटिंग किया? आप लोगों की जिसने खिदमत की आप उसका नाम भी नहीं जानते, तो किसी ने कोई मार्केटिंग नहीं किया, कोई पार्टी का नहीं, कोई नहीं। ये सारे के सारे मुसलमान हैं और ये सारे के सारे अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हैं और ये सारे के सारे अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि भाई जो इंसानियत आज परेशान है, इनकी परेशानियों को किस तरीके से कम किया जाए। आखिरी में मैं बोलता हूँ कि जो गलती हुई हमसे, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। शांति नगर बाईपास पे ये खिदमत के साथ ही, भोपाल खिदमतगार के साथ ही जो यहाँ पे मजदूर राहगीर परेशान आ रहे हैं भूखे प्यासे, उनके लिए खाने का, फल फ्रूट का और पानी का इंतजाम खिदमत वाले साथियों द्वारा किया गया माशाल्लाह। खाना ले लीजिए, खाना पानी अगर जिसने नहीं खाया आ जाइए। गाड़ी लगा लीजिए साइड में। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की टीम रात को 2 बजे हाईवे पर लोग जो इधर से उधर जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए दूध का इंतजाम है, बिस्किट है और खाने का इंतजाम है, जो पूरी तरीके से मेहनत कर रही है भोपाल के अंदर।
ये तस्वीरें भोपाल के विदिशा बाईपास की हैं। यहाँ से रोजाना प्रवासी मजदूरों से भरी हुई सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं। हजारों प्रवासी मजदूर इस रास्ते से पैदल भी अपने घर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस जगह पर जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। यहाँ से जो भी गुजरता है, जमात इस्लामी हिंद के सदस्य उन्हें भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का भी इंतजाम करते हैं। मतलब साफ है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो भूखा नहीं रहता। जमात इस्लामी हिंद के सदस्य पूरे दिलो जान से प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगे हुए हैं। रमजान के इस पाक महीने में जमात इस्लामी हिंद के सदस्यों का ये नेक काम काबिल तारीफ है। इससे न सिर्फ उन्हें पुण्य मिलेगा, बल्कि गरीब और बेबस प्रवासी मजदूरों की भूख भी मिटेगी। कोरोना महामारी से देश भर में हो रहे मजदूरों के पलायन में इंदौर के कई सामाजिक संगठन अपने घरों की ओर लौटते हुए मजदूरों की सेवाओं में लगे हुए हैं। रमजान के पाक महीने में कई मुस्लिम संगठन भी मजदूरों की खिदमत में लगे हुए हैं। इसी तरह इंदौर बाईपास पर मुस्लिम सामाजिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के युवा भी महाराष्ट्र से आने वाले एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार जाने वाले व मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों का लगातार ख्याल रख रहे हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अजीम बिलाल बेलिंग, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। यह खिदमत का काम हमने इस वजह से किया है कि रमज़ान का जो महीना है, हमें शिद्दत, भूख, प्यास और सब्र का महीना है, जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से हमें इस भूख की, प्यास की शिद्दत हमें महसूस होती है। तो उसको देखते हुए हमने इस रमज़ान की बरकतों के महीने को देखते हुए और कोरोना महामारी को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ यहाँ से गुजर रही है, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, लेकिन ये बीमारी भी है जिसकी पैरेलली हमें जिससे लड़ना है। तो हमने ऐसी प्लानिंग की है इस महामारी को देखते हुए, जहाँ पर हमारे यहाँ पर मौजूद रहते हैं 20 से 25 वॉलंटियर, जो गाड़ियों को यहाँ रुकने नहीं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे असल मकसद है कि लोग रुकेंगे और भीड़ लगेगी, जिसकी वजह से कोई कुछ जज नहीं कर सकता किसको कोरोना है। तो हमारा असल पूरी जो हमने प्लानिंग करी है, पूरे फूड पैक्ड आइटम है, जिसमें हाथ लगने का कोई अंदेशा नहीं है। बिस्किट्स हैं, ORS है, ब्रेड के पैकेट्स हैं, टोस्ट है, पानी की ठंडी फिल्टर्ड बॉटल है, हमारे प्याज के पैकेट्स हैं कि लू को देखते हुए। ये पूरा प्रोग्राम हमने इस वजह से ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो असल मकसद है लोगों तक उनका पेट भरने के लिए जो हमारी छोटी सी कोशिश हो सकती है वो हम पूरी अंजाम दे रहे हैं। और पूरे वॉलंटियर सभी लोग हमारे इंदौर के हैं। सैनिटाइज यहाँ पर रेगुलर प्रोसेस पे होता है। महाराष्ट्र से अपने घर की तरफ लौट रहे मजदूरों का कहना है, सरकार और मीडिया उनकी बात नहीं सुनता, ना ही उनकी बात करता है। महाराष्ट्र से अपने घर साइकिल से लौट रहे पवन कुमार गाजीपुर के रहने वाले हैं। मुंबई में रहकर पढ़ाई भी करते थे और काम भी, लेकिन लॉकडाउन होने से पढ़ाई और काम दोनों चला गया। अब पवन का गुस्सा देखिए। इनका कहना है कि मीडिया उनकी बात नहीं करता, उन्हें हिंदू, मुसलमान और जमात का मसाला चाहिए। सर, महाराष्ट्र के मुंबई ठाणे में रहते थे, ठाणे जिले में भिवंडी में। हम काम भी करते हैं, हम एक छात्र हैं, और जैसे छुट्टी लगती है तो हम काम भी कर लेते हैं अपना, उसी में पढ़ाई भी करते हैं। और वहाँ काम करते थे, वहाँ के लोग बोल दिए कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, काम बंद हो गया, आप जा सकते हैं अपने यहाँ। कुछ हमें सुविधा दी नहीं गई तो हम मजबूरी में जा रहे हैं।
और हमारी खबर दिखाई नहीं जाती है न्यूज़ चैनल पे। बस जो जमात वाले मिले तो उसको रात दिन दिखाएंगे, लेकिन दूसरे मिले श्रद्धालु तो उनको नहीं दिखाया जाता है कि वो मिले पॉजिटिव। सिर्फ जमात के पीछे लगा, लेकिन जमात वाले खाना खिला रहे वो नहीं दिखाया जा रहा है। खाली हिंदू मुस्लिम करने पे मीडिया लगी हुई है और बाकी जो मेन खबर उसे मुद्दा वो हटका दिया जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर की इन पंक्तियों को अमली जामा पहनाते हुए खंडवा के मुस्लिम खत्री समाज के लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी लोग जमात से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वही जमात जिस पर कोरोना फैलाने के आरोप भी लगे हैं। ये लोग लॉकडाउन के कारण परेशान होकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, उनके रुकने और आराम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पैदल चलकर जिन बेबस लोगों की चप्पलें टूट गई हैं, उन्हें नई चप्पल पहनने के लिए दे रहे हैं। और इन सेवा करने वाले लोगों में जमात से जुड़े लोग भी हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर जमात पर आरोप लगे हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मानव सेवा ही सच्चा धर्म है और वही वो कर रहे हैं। बाहर से आने वाले किसी भी मजदूर की जात नहीं पूछी जाती, बल्कि उसकी जरूरत पूछी जाती है और उसकी फिर मदद की जाती है। तो देखिए, अभी हमारे पूरे समाज खत्री बिरादरी जो है ये सेवा कर रही है। वो हजारों किलोमीटर दूर से जो मजदूर आ रहे हैं और जो थके हुए आ रहे हैं, उनको हमने यहाँ खाने का इंतजाम, रुकने का इंतजाम, उनको सैनिटाइज किया जाता है और उनके लिए चप्पल वितरण भी का भी व्यवस्था रखी है। जिनके पास चप्पल नहीं उनको चप्पल भी दे रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं उनको मास्क भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं और आराम भी करा रहे हैं। पानी की व्यवस्था है और आरोप तो क्या है, ये लगते रहते हैं और मीडिया को तो मसाला चाहिए बस। और हमारा कहा जाता है कि जमात में कोरोना बांटा, आप खाना बांट रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो उनका जो जिसकी जैसी सोच वो वैसा बोलेगा। हमारी सोच तो सेवा करना है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। मानव सेवा ही सही सेवा है और हम इसमें कोई वो नहीं है। हमारे वहाँ जो समाज का लोग आ रहे हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम। सेंधवा में भी जो है हम लोग खत्री बिरादरी की तरफ से ये काम चालू है। वहाँ पे भी खाना वितरण हो रहा है, चप्पल वितरण हो रहा है। जो जैसा मजदूर को जैसी चीज़ लग रही है, जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ वैसा जो चीज़ चाहिए उनको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। भारत में महामारी का दौर जारी है और इसी बीच मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक शुरू है। रमज़ान का महीना पवित्र होता है और इसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। इसी बीच मुसलमान तमाम ज़रूरतमंदों की जगह जगह पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को पानी पिला रहे हैं तो किसी को नाश्ता और खाने का इंतज़ाम रास्तों में करते हुए नजर आ रहे हैं। The final section is a collection of testimonials, which we hope will leave no doubt in any mind that what is shown in this film is no fiction. नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस लॉकडाउन में लाखों करोड़ों की बात करने वालों का तो मुझे पता नहीं, पर इंसानियत की मिसाल हिंदू मुस्लिम दोनों ने दिखाई है। शायद कम शब्दों में कहूँ तो मुसलमानों ने ज़्यादा। जिनकी मीडिया से लेकर हर इंसान ने, हर राजनीति के ठेकेदारों ने उनकी बुराइयां तो भरपूर दिखाई, पर शायद उनकी अच्छाइयां 1% नहीं दिखाई होगी। पर हम तुम्हारी अच्छाई दिखाएंगे, हम आपकी असलियत समाज के सामने लाएंगे। इधर मुसलमान भाई हम लोग को बुला कर लाए और खाना खिलाए। इधर ही हम बहुत उन से खुश हैं, दूसरा कुछ नहीं। जो पेट में अनाज पड़ गया वही हम लोग का सही लगता है। मैं यहाँ 9 दिन से आया हूँ, 9 दिन से फंसा हूँ। तो जितने आदमी आया है हमारे मदद करने के लिए, सभी मुसलमान आया है, बाकी कोई दूसरा कोई नहीं आया। This is a testimony from a person called Virendra Yadav. He writes,
that I covered 1700 kilometers by the time I reached home. And all through the journey, the only people who asked whether I need food or water were the Muslims. Please don't forget to see what one of the persons who's commented on this also has to say. कोई भी है, जितना बेंगलोर का एनजीओ सबको हम हेल्प लेते हैं। जो भी मैं आता है यहाँ पर कि हम हेल्प देने चाहते हैं, उसमें हमारे मुस्लिम भाई बहुत हेल्प किया है। मुस्लिम भाई लोग डेली यहाँ पर काउंटर पे खड़े रहते थे और बहुत मुस्लिम भाइयों ने मेरे को हेल्प किया। यहाँ पर हर रेलवे स्टेशन में मैं रात को गया, वहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई खाना दे रहे थे, उसके साथ में मैंने भी काम किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गया कि 4 लोग थे और 2000 लोगोग को खाना खिलाया था। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ಈಗ 100 ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಹೋದರು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಸ್ಕೆಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಘಟನೆಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು ನೀರು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟು ನೀರು ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. They are true to their name. They are showing mercy on a lot of people, and they are actually giving food to a lot of people. I've been told that every day 50,000 people are being fed by way of 38 kitchens throughout Bengaluru by Mercy Mission, and I think it's a phenomenal work. A lot of our policemen as well, you know, they are working from morning till evening. They don't even have time to go home for their food. Our police officers and our police personnel, and helping them in performing their duty without any interruption. So I would like to thank all of you for doing this, and I think it's a great task that you're doing, and I'm sure you will get the blessings of all the people whom you have served food to. Thank you so much. I wish all my Muslim brothers who have been working the whole of Ramzan holy month. They have celebrated Eid in the railway station, and they've been continuing to serve the people. By serving the people, they are serving the God, which they have been doing very sincerely in all the railway stations, in all the places. They have been honestly, sincerely serving all the migrants, all the people who have been displaced, who are in big challenges, problems, trouble. By holding them, serving them, they have done their best. I appreciate them wholeheartedly. Thank you so much. I am the co-convener of the Nagar Task Force for providing each and everyone, even the food, even the low-cash helping. Nagas will be likely to collaborate with you guys. We always need your help, and we will be together. Thank you so much. Thank you. वी आर वेरी ग्रेटफुल जो प्यार हमें मिला, जो ब्रदरहुड का जो एसेंस मिला हमें कि हम वो एक ही भगवान के बच्चे, एक ही अल्लाह के बच्चे हैं। तो वो जो एसेंस, वो ब्रदरहुड, ये आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। वो आज मेरा पर्सनली, मुझे इनका नहीं पता, मेरा पर्सनली पहला इफ्तार था जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मुसलमान वीरों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार बना रहे। Kind of communal harmony that we have seen over here, along with the volunteers of Project Smile, Mercy Mission and others coming together, is something which is a mini India by itself. The kind of people who come together to work for these migrants should set an example for a lot of people, that what it will be if all Indians work together like this in service of the people. And that's what we have seen here from last 20 days, where every volunteer has given his time, effort, energy to ensure that no migrant who's leaving Karnataka goes hungry. And that is the spirit of this beautiful gathering that we have at the cantonment station, and this wonderful iftar that we have had every day practically over here was the exact perfect example of communal harmony that India needs.
आप लोगों ने यहाँ घर किया है, जहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुस्लिम भाइयों के लिए एक सल्यूट तो बनता है। जय हिंद भाइयों।